ऐसा इतिहास आज के हमारे जमाने के बच्चे को मालूम होना, ये इतिहास से निकाले बहुत गलत है। कि टिप्पू सुल्तान और संगोली रायण्णा साहब, ये तमाम लोगों ने इस देश के लिए जो अपना खून बहाया है, ऐसे लोगों को आज हिस्ट्री से मिटाने की पूरी कोशिश कर रही है सरकार ने। मैं चाहता हूं कि बीजेपी सरकार को ही इस हुकूमत से बाहर करें, क्योंकि इससे मुल्क को खतरा है, देश को खतरा है, भाईचारे को खतरा है। तो ये चैप्टर सिर्फ स्टेट कर्नाटका में ही नहीं बल्कि सेंट्रल कर्नाटक में भी आपको ऐड करना चाहिए। सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, संगोली रायण्णा जो फ्रीडम फाइटर है इस देश के, रानी अब्बक्का, बल्लारी सिद्धम्मा, उमा देवी कुंदापुर, इस तरह से फ्रीडम फाइटर के इतिहास में जो नाम लिखे गए हैं वो नाम निकालने की कोशिश जो बीजेपी सरकार कर रही है, तुम इसमें से नाम जो निकालना सोच रहे हैं वो निकालिए मत। क्योंकि टिप्पू सुल्तान जैसी बहादुरी जैसा जज्बा हम हर शहरी में होना चाहिए हिंदुस्तान के। इसमें ब्रिटिश राज के पूरा छाना मार के पूरा वहाँ से पूरा चोरी करके लेके गए थे, पूरा वहाँ के लोग अनाथ हुए थे। जब टिप्पू सुल्तान ने वगैरह पूरे छत्री चामार बंगार क्या क्या सब देख के पहले जैसे था वैसे इतिहास बनाए नहीं। ऐसा टिप्पू सुल्तान उनके बेटे को, उसके बेटे को के लिए हमारे देश को बचाए, ऐसा है। टिप्पू सुल्तान एक महान व्यक्ति है। हम वार्निंग देना चाहते हैं कि आप इस देश के हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश ना करें। ये देश का हिस्ट्री जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे सभी भावुकताओं को एक ताज बनकर हमारे इस देश का शान है, उसको मिटाने की कोशिश ना करे बोल के इस मौके पे मैं तमाम बीजेपी की सरकार को मैं यहाँ पर मैं वार्निंग करते हुए बीजेपी गवर्नमेंट से जल्द आप ये जो भी चैप्टर निकालने की सोच रहे हैं बिल्कुल ना करें। कभी कभी बीजेपी का गवर्नमेंट सत्ता में आए है, ये देश में केसरीकरण बनना, जात्यातीत बनना, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करना, ऐसे ऐसे चीजें हमेशा लाते रहे। और टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो उनसे भी जो भी किए हैं वो सब सारे चीजों को वापस अगर आप अमल में नहीं लेंगे तो ये हमारा एहतजाज हमेशा जारी रहेगा। गुलबर्गा कर्नाटक गुलबर्गा में नहीं पूरी दुनिया में एहतजाज करेंगे। बीजेपी ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟಗಳಾದ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ಇಂಥ ದೇಶ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಯಾವಾಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ BJP ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಸರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಜಾತಿವಾದಿ ಕೋಮು ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಏನು BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ದೇಶದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೇನಾನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿಗಾಗಿ, ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಸವಣ್ಣವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, SLC ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, CBS ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾರದಾಂಬೆ ಗುಡಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಹೋದಾಗ, ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೇಶ್ವರಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಹೋದಾಗ ಈ ದೇಶದ ದೇಶಭಕ್ತ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆ ಗುಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಛತ್ರಿ ಚಾಮರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗತವೈಭವವನ್ನು ಮೆರೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಒಬ್ಬನೇ. ಇವತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೆಸರಿದೆ. ಇವತ್ತು ನವದೆಹಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 96,000 ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು BJPಯವರಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಈ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಈ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಇತಿಹಾಸ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರ ಇತಿಹಾಸ,
ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ದೇಶವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಮರೆಮಾಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಭ್ಯ ರಣಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಮರೆಮಾಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ವೀರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೋನಾನಿ ಹೋರಾಟಗಾರ 15 ಆಗಸ್ಟ್ನ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು 26ನೇ ಜನವರಿ ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನನಾಯಕ ವೀರ ಪುತ್ರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು BJPಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಾರರು ಕೂಡ ಇದರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ BJP ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇಂಥ ಕೇಸರಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜಾತೀಯತೆ ಮನೋಭಾವನ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಜಾತಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸರ್ವಧರ್ಮರು ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತದೆ ಸರ್ವಜನ ಸುಖಿಯಂತೂ ಭವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವರು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಜಾತೀಯತೆ ಬಿತ್ತು ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಇವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೇಸರೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿರುಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು BJP ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿರುಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಬೇಗನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಮನವಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತಂತೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸದಳ ಗುಲ್ಬರ್ಗ. हमारे नया सवेरा संगठन के सदर जनाब मोदीन पटेल साहब के सदारत में आज एक मेमोरेंडम DC साहब को सबमिट किए हैं और इस मेमोरेंडम को सबमिट करने का अहम मकसद ये था, जैसा कि ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने आज जो सिलेबस जो हमारे हिस्ट्री जो है, पहले हमारे फ्रीडम फाइटर्स जैसा कि टिप्पू सुल्तान और संगोली रायण्णा साहब, ये तमाम लोगों ने इस देश के लिए जो अपना खून बहाया है और इनके पूरा आल औलाद को इस देश के लिए अपनी पूरा वक्त कुर्बानी दिए हुए ऐसे लोगों को आज हिस्ट्री से मिटाने की पूरी कोशिश करी है सरकार ने. इसके खिलाफ आज हम मेमोरेंडम सबमिट किए हैं और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, ये आज हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिस सीट पर बैठकर इन हुकूमत कर रहे हैं, ये लोग भी खुद हजरत टिप्पू सुल्तान रजी अल्लाह तआला की हिस्ट्री पढ़कर और संगोली रायण्णा साहब का हिस्ट्री पढ़कर ही आज इन्होंने यहाँ पर असेंबली में बैठकर CM बनकर, कैबिनेट मिनिस्टर बनकर ये लोग बैठे हैं. मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब से भी मैं सवाल करना चाहता हूँ. एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने भी हजरत टिप्पू सुल्तान रजी अल्लाह तआला का हिस्ट्री पढ़कर ही उन्होंने आज कैबिनेट मिनिस्टर बनकर आज असेंबली में बैठकर उन्होंने जो सियासत कर रहे हैं, आज उनके गंदी सियासत के खिलाफ आज हम लोग तमाम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मजहब के लोग, सेकुलर ज़हन रखने वाले लोग आज उनके खिलाफ आवाज़ उठाए हैं. इंशाअल्लाह हम ये हुकूमत कर्नाटका को ये इसके ज़रिए से यहाँ से हम वार्निंग देना चाहते हैं कि आप इस देश के हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश ना करें. ये देश का हिस्ट्री जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे सभी भावुकता को एक ताज बनकर हमारे इस देश का शान है, उसको मिटाने की कोशिश ना करे बोल के इस मौके पे मैं तमाम BJP की सरकार को मैं यहाँ पर मैं वार्निंग करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ. हजरत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और संगोली रायण्णा जो फ्रीडम फाइटर है इस देश के, और रानी अब्बक्का और बल्लारी सिद्धम्मा, उमादेवी कुंदापुर और इस तरह से फ्रीडम फाइटर के जो इतिहास में जो नाम लिखे गए हैं वो नाम निकालने की कोशिश जो BJP सरकार कर रही है. मैं BJP सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, तुम इसमें से नाम जो निकालना सोच रहे हैं वो निकालिए मत, क्योंकि ये इतिहास पढ़कर आप भी बड़े हुए हैं, ये इतिहास पढ़कर हम भी बड़े हुए हैं, और ये इतिहास जब तक ये दुनिया कायम है तब तक ये इतिहास रहने वाला है. कोई एक पेज में मिटाने से कोई मिटने वाला नहीं है. क्योंकि मैं सरकार इससे हदबंद गुजारिश करता हूँ कि जितने भी इतिहास आप जो भी निकालने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको इतिहास को और रख कर, अगर नहीं रखेंगे तो
जो नया सवेरा के संगठन की जानिब से पूरा गुलबर्गा में एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे और कर्नाटक लेवल में हिंदुस्तान लेवल पे इसका एहतजाज होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। सेकुलर मुल्क में आज भी हमको आज़ादी नहीं मिली, आज भी हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। हर वक्त मुस्लिम के खिलाफ यहाँ पर अलग अलग कार्रवाई करते हुए हमारी बीजेपी सरकार आए दिनों में नए चीज़ को उभार रही है। तो मैं बीजेपी सरकार से डिमांड करती हूँ, जो आप लोगों ने एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो चेंजेस किया है उसको भी आप लोग ना चेंज करें, और साथ ही साथ जो हमारे हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो मैसूर के शेर थे, जो 7th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर था उसमें टीपू सुल्तान का चैप्टर को रिमूव किया जा रहा है। तो मैं गुजारिश करती हूँ बीजेपी सरकार से, हज़रत टीपू सुल्तान एक ऐसे शख्सियत थे जो इंसानों से नहीं अंग्रेज़ों से ही नहीं बल्कि शेर से भी मुकाबला किए हैं। वैसे बहादुर शख्स की जो चैप्टर आप निकालने की सोच रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ ये चैप्टर सिर्फ स्टेट कर्नाटक में ही नहीं बल्कि सेंट्रल कर्नाटक में भी आपको ऐड करना चाहिए, क्योंकि टीपू सुल्तान जैसी बहादुरी जैसा जज्बा हम हर शहरी में होना चाहिए हिंदुस्तान के। तो मैं हमारी तमाम यहाँ पे जो भी वुमेंस खड़े हुए हैं, हम लोग हर अलग अलग सोशल डिपार्टमेंट से सोसाइटी से आए हुए हैं। हम सबकी एक ही डिमांड है। आज हम औरतें बाहर इसीलिए आए हैं, जो इससे पहले टीपू सुल्तान जयंती करने पर रोका जा रहा था, आज टीपू सुल्तान की चैप्टर ही निकाला जा रहा है। तो हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ बीजेपी गवर्नमेंट से जल्द आप ये जो भी चैप्टर निकालने की सोच रहे हैं बिल्कुल ना करें। अगर आप इसको फिर से हटाने की सोचेंगे या कोशिश करेंगे तो हम हर वक्त आए दिन प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जो फ़िरका परस्त तंजीम बीजेपी जो आज रूलिंग में है, कर्नाटक में भी फ़िरका परस्त तंजीम है, वो मुजाहिदीन आज़ादी जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी अजीम कुर्बानियाँ दी हैं, जिसको तारीख़ कभी भुला नहीं सकती। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शहीद हुए हैं और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद ने पहला मिसाइल बनाया, और आज अंग्रेज़ भी उनके हथियार को, उनके मिसाइल को अपने म्यूज़ियम में रखी है। पूरा हिंदुस्तान हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ को जानता है, पहचानता है, उनकी अजीम कुर्बानियों को याद करता है। जिस तरह नारायण संगणना सोली और जितने भी हिंदू भाई हैं जो सेकुलर जहन के हैं, उनको भी आज बीजेपी सरकार तारीख़ी किताबों से निसाब से हटाने की कोशिश कर रही है, जो इंतहाई नापाक है और जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश कर रही है। इस तरह एक ज़ाफ़रानी रंग एक हिंदू राष्ट्र की तरफ ये कदम बढ़ा रही है बीजेपी सरकार, जिसका हम तहे दिल से और पूरी ताकत से इसका पुरज़ोर मुखालिफत करते हैं, इसकी मज़म्मत करते हैं। अगर हक़ के तायीद में और जुल्म के ख़िलाफ़ जिस तरह आवाज़ नहीं उठाएंगे तो तारीख़ हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं तमाम सेकुलर जहन मुस्लिम इदारों, तंजीमों और हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ कि बीजेपी की इस फ़िरका परस्त ज़हनियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। सब एक तरह हो के मैं चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार को ही इस हुकूमत से बाहर करें, क्योंकि इससे मुल्क को ख़तरा है, देश को ख़तरा है, भाईचारे को ख़तरा है। फ़िरका परस्ती उरूज पर है आज के इस दौर में। लिहाजा मैं इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हमारी डिमांड ये है कि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो मुजाहिद आज़ादी हैं, उनके इतिहास को सिलेबस की किताबों से जो निकाला गया है, निकाल करके जो सिलेबस तरतीब दिया जा रहा है, इसकी हम सख्त मुखालिफत करते हैं। वो इसलिए भी है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ मुसलमानों के कायद नहीं थे, वो जंग आज़ादी हैं। उन्होंने कभी अंग्रेज़ों के सामने अपने आप को कभी झुकाया नहीं, कभी दिन जो है ना अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने शेर की ज़िंदगी करे और शेर की तरह उन्होंने मुकाबला करते हुए शहीद हुए हैं। आज वैसे शख्स के वैसे शहीद मुजाहिदी को अगर गवर्नमेंट नज़रअंदाज करते हुए और सिलेबस के किताबों से जब हटाती है, तो इससे इस गवर्नमेंट के जहन का हमको बात समझ में आती है कि इन्होंने कितनी जातिवाद की हुकूमत करना चाहते हैं। ये बिल्कुल चलने वाली नहीं है। ना सिर्फ टीपू सुल्तान बल्कि इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से भी इसमें ये करें, ये 30% कम करने के नाम पे इन्होंने ये खेल रचाया है। ये चलने वाला नहीं है। आज ही हमने
एक स्टेटमेंट यानी एजुकेशन मिनिस्टर का हमने पढ़ा है, उसमें मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि हमने ऐसा फ़ैसला लिया नहीं है। अगर ये फ़ैसला नहीं लिए हैं, जैसा कि आप ये जो बात बता रहे हैं ये वाकई सही है जो आप कह रहे हैं बात, तो ये खुशाइन बात है। हम आपकी इस बात को स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हम चाहते हैं जैसे जो इतिहास के पन्नों में जो किताबों में जो दर्ज थी ये स्टोरी को बाकी रखें, यही हमारा मुतालबा है।